19 की एज में नवंबर 2020 में आई मेड माई फर्स्ट 1 lakh इन दैट मंथ itself, and that is when I decided that for better or for worse I will never work in a job फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा पहला 1 लाख पर मंथ हिट हुआ था नवंबर 2020 में बाय फ्रीलांसिंग एंड टीचिंग कोड टू स्टूडेंट्स। बट अगर आप एक टीनेजर हो तो हियर मी आउट। जब मैं 16, 17, 18 का था, आई यूज टू ड्रीम ऑफ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट टॉप टेक कंपनीज। बहुत सारे डे इन द लाइफ वीडियोस देखा करता था, बहुत सारी सैलरीज के बारे में वीडियोस दिखता था, एंड माई माइंड वॉज कंडीशन टू ओनली थिंक अबाउट दैट एवरी सिंगल डे। कॉलेज में आते ही पहले दिन मैंने हैकर रैंक खोल लिया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग बिकॉज आई थॉट दैट विल हेल्प मी गेट टू वेयर आई वांट टू बी इन लाइफ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्किंग फॉर सम बिग टेक कंपनी। आप में से बहुत सारे लोग ड्रीम ऑफ वर्किंग इन अ IT जॉब, right? But the reality is majority of you will be working in a service based IT company like TCS, Wipro, Infosys and many others. But here is the stark reality. 10 साल पहले इन IT jobs की एवरेज सैलरी हुआ करती थी 2.5 to 3 lakhs for the whole year. 2.5 to 3 lakhs per annum. वहीं आज की डेट में 2023 में ये एवरेज सैलरी है जस्ट 3 to 3.5 लाख रुपीज। इसमें अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेंगे तो आपकी सैलरी एक्चुअली हाफ हो गई है एज अ IT जॉब वर्कर। वहीं ऑन द अदर हैंड द सैलरी ऑफ अ CEO एट दीज IT जॉब कंपनीज हैव स्काई रॉकेटेड। हर साल CEO की सैलरी 25% ग्रो हो रही थी कंपाउंडेड एनुअली। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, पुणे में दोस्त है मेरे जो कि इन्फोसिस, विप्रो में काम कर रहे हैं एंड दे आर ऑल गेटिंग पेड दिस सैलरी and they are still sticking to it. It's like an addiction that is keeping them hooked. जैसे वो होता है ना, जो रैट एक अपने चीज के लिए भाग रहा होता है and then they get trapped. That is exactly what is happening for the majority of youth of this nation. But if you're watching this video, something tells me that you want to be better, you want to stand out, and you want to make your parents and your family proud. And so if you want to make big money as a teenager, this is exactly the 7 principles that you need to know to get there. I wish I had someone to tell this to me when I was wasting hours watching Ancient Aliens and Shin-chan and Doraemon. Make sure कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. The first principle is to let go of the chocolate in return for the triple story cake. हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि immediate जो प्लेजर होता है, जो इमीडिएट सक्सेस होती है, उसके पीछे भाग रहे होते हैं वाइल दे आर निग्लेक्टिंग द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड द ग्रोथ दैट दे कैन हैव। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि 2020 से 2021 तक मैं कोडिंग सिखा रहा था ऑन अ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आई वाज गेटिंग पेड फॉर एवरी आवर आई स्पेंट टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हिच वाज प्रीटी गुड मनी, बट आई जस्ट डिड नॉट फील एनर्जेटिक आफ्टर टेकिंग दोज क्लासेस। आई फेल्ट लाइक कि मेरी एनर्जी पूरी डिप्लीट हो गई थी एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग न्यू, anything different in my schedule. So I had to say no to that opportunity. A big chunk of what I was making was coming from teaching on that platform, but I still said no because I wanted the long-term success. And for that, I will need to have the free time that will allow me to get there. एक बहुत अच्छा experiment था called as the marshmallow test, जिसमें 2 group of students को रखते हैं and उनको उनके सामने marshmallows रखते हैं and they are said that if you will not have these marshmallows in the next half an hour to 1 hour, I will come back and give you another pack of marshmallows. And when both of them are looked at through a CCTV camera, one group goes out there and just eats all the marshmallows while the other one does not. In the next 10 to 20 years, their success was measured and it was found that those who were able to say no to the immediate pleasure of eating the marshmallows were a lot more successful than those जिन्होंने जाकर के उसको immediately खा लिया. Moral of the story being, the more you're able to say no to immediate success, जो छोटा पैसा होता है, right? If you can say no to that for big money later on in your career, that is going to be your big win. Essentially, it's all about saying no to a game which has no multipliers. मैं कोडिंग सिखा रहा हूँ,
मेरा टाइम लग रहा है एंड आई कैन नॉट स्केल इट, इट्स नॉट स्केलेबल, एंड सो ऑल ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी इज गेटिंग sucked into it and I'm not seeing exponential returns, and that is why I think it's important to let go of the short-term success for the long-term win in life. The second lesson is to look at the bigger picture in life. मेरे पास ऐसे बहुत सारे instances थे जब मैं इंदौर में जब एक छोटा बच्चा था, I used to stand next to चाट corners and वहाँ पे गोलगप्पे खा रहा हूँ, कुछ ऐसे टिक्की खा रहा हूँ, and सामने से I used to see this convertible Audi going by, राइट और मेरा दिमाग एकदम से सोचता कि भाई कितनी प्यारी गाड़ी है, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, या काश मेरे पापा के पास ऐसी गाड़ी होती. एंड दैट इज़ ऑल दैट आई यूज टू थिंक अबाउट. मैं ये सोचना ही भूल गया, मैं तो ये सोच ही नहीं पाया कि जो बंदा बैठा है ऑडी में उसने क्या काम किया होगा दैट गॉट हिम द ऑडी एंड द सक्सेस. आई लुक्ड एट द मटीरियल सक्सेस बट नेवर एट द बिजनेस सक्सेस. ऐसा हमारे साथ कितनी बार होता है कि हम होटल्स में जाते हैं एंड वहाँ पे जाकर के सारे बॉडी वॉश शैम्पू वो सब भर लेते हैं अपने बैग में, फिर उनको बोलते हैं और ऑर्डर करो और लेकर आओ, फिर उसको भी भर लेते हैं एंड पूरा दिमाग हमारा जा रहा है ऑन हाउ कैन आई अक्यूमुलेट ऑल ऑफ दिस फ्री स्टफ, राइट. जो एक लोअर लेवल थिंकिंग होती है हम वहीं तक सोच पाते हैं, उसके आगे हम बड़ा कुछ सोच ही नहीं सकते. इतना बड़ा होटल बनाया कैसे इसने एंड हाउ डिड ही बिल्ड इट सो सक्सेसफुली. हम अपनी पूरी लाइफ कूपन्स कलेक्ट करने में निकाल देते हैं, कैसे मुझे 5% डिस्काउंट मिल जाए, 10% डिस्काउंट मिल जाए, थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, बट हम कभी सोचते ही नहीं है कि भाई ये प्लेटफॉर्म किसने बनाया, ये जो साइट है अमेजॉन यूज़ करते हो हर दिन, वो बनाई किसने, जोमेटो जिससे आप खाना ऑर्डर करते हो वो बनाया किसने, और इसने कैसे बनाया, कैसे ग्रो किया उसको. वी आर स्टक इन द लोअर लेवल थिंकिंग एंड हम उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ विच वी आर हैविंग दिस टनल विजन, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, लिमिटेड थिंकिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नेवर एबल टू लुक एट द बिग पिक्चर इन लाइफ. अगर आप एक टीनेजर हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में एक बंदा होगा जो कि बहुत अमीर है, राइट, उसके पापा कोई बिजनेस चलाते हैं एंड ऑल दैट, एंड आप उससे बहुत जेलस होते होगे. बट एक ऐसी चीज़ जो उस बच्चे के पास है वो है माइंडसेट टू थिंक बिग, राइट. उसने बचपन से ही अपने पापा को बड़े पैसे के बारे में बात करते हुए देखा है, बड़े ट्रांजैक्शंस होते हुए देखे हैं, तो वो हमेशा उसका दिमाग उसमें चलता रहता है कि भाई कैसे मैं कुछ बड़ी चीज़ बना सकता हूँ लाइफ में. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक अबाउट, क्योंकि अगर बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे कैसे, राइट. यू शुड ऑलवेज एम फॉर द मून, इफ नॉट यू विल लैंड अप एट द स्टार्स. I hope that you understand this. Hit the like button if you do.